نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنی انتخابی مہموں کے مد نظر مندروں کے درشن کرنے شروع کر دی۔ دو مختلف واقعات میں 1 کروڑ کا غیر قانونی سونا ضبط۔ ٹیچر نے طلباء کے سامنے ڈانٹا تو شاگرد نے فیس بک پر قابل اعتراض ویڈیوز اپلوڈ کر دیے۔ ٹریفک حادثہ، سپاہی اور ہوم گارڈ سمیت 3 کی دردناک موت۔ بی جے پی نوکری دلانے کے بجائے چائے اور پکوڑے بیچنے پر کر رہی ہے مجبور، مایاوتی کا بیان۔ اتر پردیش میں یوگی کے مسلم وزیر محسن رضا کا متنازع بیان، اقلیتوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا۔ مشن 2019، ٹوٹ رہی کچھ دوستی تو بن رہے کچھ نئے رشتے۔ آزاد اور خود مختار فلسطین کو ہندوستان کی حمایت، قیام امن کے لیے بات چیت کا راستہ ہی واحد حل، مودی کا بیان۔ جموں کشمیر میں شرارتی عناصر کی روہنگیا مسلمانوں کی جھونپڑیوں کو نظر آتش کرنے کی ناکام کوشش۔ ہانگ کانگ میں ڈبل ڈیکر الٹنے سے 19 افراد ہلاک، 60 زخمی۔ حوثیوں کی جانب سے بچوں کا قتل عام جاری، یمنی فوج کی پیش قدمی۔ لبنان مسیحی جج کا 3 نوجوانوں کو سورہ آل عمران کا حصہ حفظ کرنے کا حکم۔ جنگی طیارہ تباہ ہونے کے بعد اسرائیل کے شام پر 30 میں سب سے بڑا فضائی حملہ، 12 فوجی ٹھکانے تباہ۔ شام میں باغیوں پر فضائی حملوں میں 1 ہفتے کے دوران 230 افراد ہلاک ہوئے، اقوام متحدہ کا بیان۔ ترکی کا بیت المقدس میں ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اعلان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلور سے ہے۔ کرناٹک کے عام انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے اپنی انتخابی مہموں کے مد نظر مندروں کے درشن کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یونین رپورٹ کے مطابق کانگریس کے حلقوں سے پتہ چلا ہے کہ راہل گاندھی نے گجرات میں بے شمار مندروں کا دورہ کیا تھا۔ اس سے ہندوؤں کا خیال کانگریس کے خلاف بیدار ہوا تھا اور بی جے پی کو 100 سیٹوں کے آنکڑے سے نیچے رکھنے میں مدد ملی تھی۔ اسی طرح اب راہل کی تجویز کردہ کرناٹک دورے کو دیکھتے ہوئے پارٹی بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے لیے جا رہی ہے۔ کانگریس کے حلقوں نے بتایا کہ راہل گاندھی نے 4 دن کا کرناٹک دورہ کل سے شروع کر دیا ہے۔ اس دوران وہ جن جن علاقوں میں جائیں گے وہاں کی مندروں کا دورہ کریں گے۔ کانگریسی رہنماؤں کا ماننا ہے کہ اگلے مرحلے میں بھی راہل نے پروگرام کو کرناٹک کے انتخابی دورے کے دوران مندروں و منتروں کو جانے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس سے راہل گاندھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ صرف مسلم کمیونٹی سے ہی بنے ہوئے نہیں ہیں، جیسا کہ گزشتہ وقت میں بی جے پی نے اپنی شبیہ کو لے کر اعلان کیا تھا۔ راہل گاندھی مندروں میں جا کر اپنے سیکولر شبیہ کو مضبوط بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ موسم گرما میں کرناٹک میں اسمبلی کے انتخابات ہونے کی تجویز ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے بعد کبھی بھی کرناٹک میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ کرناٹک کے کانگریسی کارکنان کا کہنا ہے کہ راہل اگلے چند دنوں میں تمام مذہبی مقامات پر ماتھا ٹیکنے کا کام شروع کر دیں گے۔ اب خبر منگلور سے۔ کل یہاں شہر میں پیش آئے 2 مختلف واقعات میں ڈی آر آئی منگلور کی جانب سے قریب 4 کلو سونا ضبط کرنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پہلا واقعہ یہاں کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیش آیا تو دوسرا واقعہ منگلور ریلوے جنکشن کے پاس پیش آیا ہے۔ کاسرگوڑ سے تعلق رکھنے والے حسن اور سمیرہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ اسپائس جیٹ کے ذریعے دبئی سے منگلور پہنچے تھے۔ یہ لوگ کمر سے باندھنے والے بیلٹ میں سونے کو چپکا کر لا رہے تھے۔ کسٹم افسران نے شک کی بنا پر چھان بین کی تو قریب 2.25 کلو سونا نکلا، جس کی مالیت 67 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ دوسرا واقعہ منگلور ریلوے جنکشن کے پاس پیش آیا ہے۔ پنویل سے کوزیکوڈ کی جانب سفر کر رہے ہیں 2 مسافروں کے ٹراؤزرز میں بھاری چیزوں کو دیکھ کر پولیس نے تحقیق کی تو اس کے پاس 16 سونے کے بار نکلے، جن کی شناخت محی الدین اور شمس الدین کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ لوگ اس کو دبئی سے کٹھمنڈو تک لانے میں کامیاب ہوئے، وہاں سے ممبئی اور اس کے بعد کیرلا کی جانب بڑھ رہے تھے کہ منگلور جنکشن میں دھر لیے گئے۔ تحقیقات جاری ہے۔ اب خبر کارواڑ سے۔ یہاں ایک لیڈی ٹیچر کی جانب سے کلاس روم میں دوران سبق ایک طالب علم کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی وجہ سے طالب علم کے بدلہ لینے کے لیے ٹیچر کے نام سے فیس بک پہ فیک اکاؤنٹ بنا کر اس کے ذریعے نازیبا اوڑیاں ویڈیو اپلوڈ کیے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق شہر کے ایک نجی اسکول میں زیر تعلیم طالب علم کو ٹیچر نے سبق پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے ڈانٹ دیا تھا
उससे गुस्सा आया तालिब इल्म वालिदैन से इसरार कर कि स्मार्टफोन की खरीदारी के बाद उसमें टीचर के नाम से फेसबुक में नकली अकाउंट बनाया और उसके बाद अकाउंट से नंगी वीडियोस की लिंक्स बनाकर दोस्त और अहबाब को रवाना किया। ये चीजें जब फैलने लगी तो टीचर को पता चला। उनके वालिदैन से मशवरे के बाद साइबर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर सारी सच्चाई सामने आई है। तालिब इल्म के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है, तहकीक जारी है। अब खबर हरदोई से। उत्तर प्रदेश में हरदोई शहर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की 2 मोटरसाइकिल को कुचल दिया। इस हादसे में होमगार्ड और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद की मौत पर ही वाक़ई हो गई और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट विपुल मिश्रा ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके में रात तकरीबन 1 बजे के बाद लखनऊ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे पुलिस पैकेट के बाहर बैठे होमगार्ड और पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। हादसे में कांस्टेबल मंजूर, होमगार्ड श्री चंद्रा और दीगर अफराद की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक के नीचे मोटरसाइकिलों के रगड़ने से आग लग गई, जिससे ट्रक भी जल गया। इससे पुलिस की राइफल्स भी जल गई। हादसे में जख्मी होमगार्ड समेत 2 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस दौरान चौकी इंचार्ज बाल बच गए, लेकिन मोटरसाइकिल जल गई। वाकये के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस उनकी तलाश में मसरूफ है। अब खबर लखनऊ से। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है। दरअसल मायावती हफ्ते के रोज पार्टी के रियासती दफ्तर में मुनक़िद हुए इजलास में कारकुनों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख साबित करते हुए कहा कि हमने न पहले भी हार मानी है और न अब भी हार मानने वाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने किसी भी हालत में न तो पहले कांग्रेस से हार मानी है और न ही इस वक्त बीजेपी के हथकंडों से हार मानने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तकरीबन 4 साल और बीजेपी के उत्तर प्रदेश में इख्तिदार में आए तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। इसलिए मुल्क और सूबा दोनों में हालात बेहतर होने के बजाय बदतर ही बदतर होते चले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने उनकी हकीकत को समझ लिया है, इस वजह से और ज्यादा वो बीजेपी में शामिल होने के लिए भी ज्यादा तैयार नहीं है। वजीर आजम मोदी की बार बार की जज्बातियत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत की भगवाकरण की सियासत से रियासत के आवाम का पेट नहीं भर पा रहा है और ना ही यहाँ के लोगों की गुर्बत, फाकाकशी, बेरोजगारी और महंगाई कम होकर उन्हें थोड़ा राहत ही दे पा रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन 22 करोड़ आवाम गुजरात की तरह ही बीजेपी को सबक सिखाने का मन बनाए हुए लगती है। सच तो यह है कि गुजरात के लोग बीजेपी को मुस्तरद कर चुके हैं। मोदी और अमित शाह ने बहुत सारी कोशिशें करके किसी तरह फिर से इख्तिदार तो दिला दी, लेकिन उन्होंने अपनी 150 सीटें खो दी हैं। उनकी पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत सकी। जब मोदी के अपने ही रियासत में पार्टी की बुनियाद खो गई थी, तब और जगह का क्या हाल होगा, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब खबर अमेठी से। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुनाकिदा वजीर आला इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे योगी हुकूमत के वाहिद मुस्लिम वजीर मुहसिन रजा ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा है कि अक़लियतों से मेरी ख़ास अपील है कि जैसे दीगर पार्टियों को वोट देकर जीत दिलाई है, इसी तरह एक मरतबा हमारे साथ दिल से वाबस्ता होकर देखिए, क्योंकि आप हमसे ये नहीं कह सकते हैं कि आपने हमें वोट दिया। इसकी सनद और शनाख्त मेरे पास है कि आपने हमें वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। हम जादू दिखाकर किसी को माइल करने वाले लोग नहीं हैं, हम काम करके लोगों के दिलों को जीतते हैं। इस मरतबा जब वोट करने के लिए जाएं तो मोदी जी की स्कीमों को ध्यान में रखकर वोट करें, क्योंकि 4 सालों में मोदी जी ने जो स्कीमें नाफिज की हैं उसका फायदा सभी को मिल रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चला। दूसरा मरहला 5 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा। बजट इजलास के पहले मरहले में पार्लियामेंट में कई बातें पहली मर्तबा हुई। एनडीए की साथी पार्टियों ने भी बीजेपी को एहसास करा दिया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बीजेपी क़यादत को उनकी भी सुननी पड़ेगी। मिशन 2019 को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कहीं पुरानी दोस्ती में दरारें पड़ रही हैं तो कहीं नए इत्तेहाद की उम्मीद भी नजर आ रही है। बीजेपी की 2 पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में 2019 की लड़ाई को लेकर तबादिले ख्याल किया गया।
बीजेपी क़यादत ने सभी मेंबरान पार्लियामेंट को अगले इलेक्शन के लिए कमर कसने की हिदायत दी है। बीजेपी सदर अमित शाह ने मेंबरान पार्लियामेंट को लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतहर्रिक रहने की भी हिदायत की है, क्योंकि वोटरों के 2/3 हिस्से का इंटरनेट से अहाता किया जाएगा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रामलाल पार्टी कारकुनों के साथ उस काम में तुंदही के साथ वो लोग मसरूफ हैं। अब खबर फिलिस्तीन के रमला से। वज़ीर आज़म मोदी ने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वहाँ के लोगों के मफादात के सिलसिले में हिंदुस्तान को अहदबंदी के तय आज यकीन दहानी कराई और उम्मीद जाहिर की कि फ़िलिस्तीन पुरअमन तरीके से जल्द ही एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़िलिस्तीन की हिमायत करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और फ़िलिस्तीन के 4 रोज़ा दौरे के दौरान यहाँ पहुंचे वज़ीर आज़म मोदी ने फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ 2 तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद कहा कि फ़िलिस्तीन की खुशहाली और अमन के लिए बातचीत का रास्ता ही वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए यहाँ तशद्दुद ख़त्म की जानी चाहिए और अमन का रास्ता निकालना चाहिए। मिस्टर मोदी ने कहा कि फ़िलिस्तीन की तरह हिंदुस्तान भी नौजवानों का मुल्क है। उन्हें यहाँ के नौजवानों से भी वही उम्मीदें हैं जो हिंदुस्तान के नौजवानों से हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल और जानशीन है, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान इल्म और साइंस के तबादले को फ़रोग़ देने के लिए हर साल इस मकसद से एक दूसरे के यहाँ आने जाने वाले तलबा की तादाद 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। गुज़िश्ता 30 वर्षों से मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब के ज़ेर इंतज़ाम व ज़ेर एहतिमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमानों की बेलौस और पुरखुलूस खिदमत अंजाम देने वाला मुनफरिद और काबिल एतमाद रजिस्टर्ड हज व उम्रा टूर इदारा बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल मज़कूरा इदारे यानी बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल से खिदमत हासिल करने और तफसीलात हासिल करने और मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब से रब्ता के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरात पर राबिता करें। नंबरात स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की सरमाई दार हुकूमत जम्मू के मुजाफाती इलाके गांधी नगर के छिनीरामा इलाके में गुज़िश्ता रात को शरारती अनासिर ने रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की झुग्गी झोपड़ियों को मुबैना तौर पर आग के शोरों की नज़र करने की नाकाम कोशिश की है। इन शरारती अनासिर ने झोपड़ियों की तरफ कुछ पोस्टर भी फेंके हैं जिन पर लिखा है कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को वापस भेजा जाए। ख्याल रहे कि वाक़या गांधी नगर में वाक़ संजवान मिलिट्री स्टेशन 36 ब्रिगेड फौजी कैंप पर जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों के जरिए फिदायीन हमले के बाद पेश आया है। इस दहशतगर्दाना हमले में 2 जूनियर कमीशन्ड अफसर समेत 5 नौजवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक कर्नल समेत 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। अब खबर हांगकांग से। हांगकांग में डबल डेकर बस उलटने से कम से कम 19 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने खतरनाक अंदाज में बस चलाने के इल्जाम में ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। जाए हादसे की तस्वीरों में इमदादी कारकुनों को देखा जा सकता है जो बस के अंदर फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस फिसलकर सड़क के किनारे नस्ब बिजली के खंभे से टकराने के बाद उलट गई और खंभा बस की ऊपर की मंजिल के अंदर घुस गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेने के बाद उस पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से ड्राइविंग करने और मुसाफिरों की हलाकत का सबब बनने के इल्जामात आयद किए हैं। अस्पताल की इंतजामिया ने कहा है कि जख्मियों में से एक और की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 19 हो गई। मेडिकल स्टाफ ने बताया कि 10 जख्मियों की हालत नाजुक है, जबकि मजीद अफराद को शदीद नौयत के जख्म आए हैं। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार चान हंग यू का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों की अक्सरियत बस की ऊपर की मंजिल पर सवार थी। हांगकांग के हुक्म का कहना है कि शहर का बसों का निज़ाम दुनिया में अपनी नौयत का बेहतरीन निज़ाम है और उसे मजीद तरक्की याफ्ता बनाने का अमल जारी है। अब खबर यमन से। यमन में ईरान नवाज हूसी बागियों की तरफ से निहत्ते शहरियों का कत्लेआम जारी है। हफ्ते के रोज हूसी दहशतगर्दों ने एक 3 साला बच्चा और 20 साला नौजवान गोलियों से भून डाला। अल अरबिया के मुताबिक मकामी ज़राए का कहना है कि हूसियों की तरफ से दागा गया एक गोला ताज शहर की मशरकी कॉलोनी अल मजलिया में मजलिया कार पर आकर गिरा, जिसके नतीजे में 3 साला रगत रशाद और 28 साला मोहम्मद सईद कायद शहीद हो गए, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। इस मुजरिमाना वाक़े से चंद घंटे कबल मशरक़ी ताज में साबाद कॉलोनी में हूसियों के हमले में 1 साला शीरखार और उसकी दादी शहीद हो गई थी। अब खबर लंदन से।
लबनान में गुज़िश्ता हफ्ते खातून जज ने उन 3 मुसलमान नौजवानों के खिलाफ अनोखी नौयत का फैसला सुनाया जिन पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी का इल्ज़ाम था। खातून जज ने नौजवानों को जेल भेजने के बजाय कुरान करीम की उन आयात को हिफ्ज़ करने का हुक्म दिया जिनमें हज़रत मरियम और उनके फर्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी बयान की गई है। तराबलस शहर में खातून जज जोसलिन मत्ता की जानिब से इस फैसले को लबनान में मुस्बत नज़र से देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म साद हरीरी ने ट्विटर पर और साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने फेसबुक पर इस फैसले को भरपूर अंदाज में सराहा। वाज़ेह है कि कुरान करीम में सूरह आल इमरान की आयत 33 से आयत 59 तक ख़ास तौर पर हज़रत मरियम और मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। अब खबर शाम से। शाम के हाथों F-16 जंगी तैयारा तबाह होने के बाद इसराइल ने शाम को मैदान जंग बना दिया है। 30 साल तारीख में बड़ा फिजाई हमला हुआ है। कई फौजी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ईरान को भी तंबीह जारी कर दी गई है। इसराइली दिफाई फौज के तर्जुमान ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि शामी दारुल हुकूमत दिमश्क के करीब कम से कम 12 मकामात को निशाना बनाया गया। ये सन 1982 की लबनान जंग के बाद गुज़िश्ता 30 साल में शाम के खिलाफ अपनी नौयत की पहली बड़ी कार्रवाई है। इसराइली दिफा फोर्सेस का कहना है कि पहली मरतबा उन्होंने बकौल उनके 4 शाम में ईरानी अहदाफ को भी निशाना बनाया। इसराइल की वज़ारत दिफा के तर्जुमान जोनाथन कॉन्रेक्स ने एक ट्वीट में कहा है कि इसराइल ने ईरान की इस जारियत के जवाब में शाम के अंदर शाम और ईरान के 12 अहदाफ को निशाना बनाया। इन फौजी कार्रवाइयों का मकसद इसराइली क़ियादत की जानिब से पैगाम देना है कि वो अपने हमसाया मुल्कों शाम और लबनान में ईरान की तरफ से फौजी मराकज़ कायम करने की कोशिशों को कबूल नहीं करेगा जिन्हें यहूदी रियासत पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो। ये हमला शाम में एक इसराइली तैयारे को मार गिराए जाने के बाद किए गए हैं। ये तैयारा शामी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने के बाद शामी तैयारा शिकन हमले का निशाना बन गया था। एक और खबर दिमश्क से। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के अहदेदारों ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान शाम और रूस की बदतरीन फ़िज़ाई हमलों में बाग़ियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में 230 के लगभग आम शहरी हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर ज़ैद राद अल हुसैन ने कहा है कि उनके दफ्तर को इस सिलसिले में मिलने वाली रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज से ज़ाहिर होता है कि 4 फरवरी को सूबे इदलिब में बाग़ियों के कंट्रोल के कस्बे सारक में जहरीले अज्जा भी इस्तेमाल किए गए थे। उनका कहना था कि यह मसला पिछले 7 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा हुआ है, जबकि वहाँ की सूरत हाल ये है कि उसे बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी की अदालत में भेज दिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ वहाँ पर अमन लाने के लिए पहले से ज़्यादा ठोस इक़दाम किए जाने चाहिए। आज की आखिरी खबर अनक़रा से है। तुर्की के महकमे तालीम ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में एक रिसर्च सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। अल-कुद्स में रिसर्च सेंटर के क़याम का मकसद मुक़द्दस शहर के दिफा के लिए इक़दाम करना है। तुर्की से नशरियात पेश करने वाले TRT टीवी चैनल के मुताबिक अल-कुद्स में नए रिसर्च सेंटर के क़याम का मकसद अल-कुद्स के दिफा में राय अम्मा हमवार करना और बैतुल मक़दिस के अरब इस्लामी और फ़िलिस्तीनी तशक्कुस को कायम रखना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैतुल मक़दिस में रिसर्च सेंटर मरमरा यूनिवर्सिटी के मातहत कायम किया जाएगा। अल-कुद्स रिसर्च सेंटर से बैतुल मक़दिस की तारीख़, सक़ाफ़त, फ़िलिस्तीन के समाजी ढांचे और अल-कुद्स की सियासी और जुग़राफ़ियाई हैसियत का दिफा करना है। रिसर्च सेंटर में मुतअद्दिद वर्कशॉप्स कायम की जाएंगी। अल-कुद्स के हवाले से आगाही मुहिम्मात चलाने के साथ कौमी और आलमी सतह पर अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चलाई जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम